Good morning, kids. Welcome to the another second lesson of functions of management. Move on to the another function of management, which is coordinating. Coordinating means what? Orderly arrangement. Coordination means what? Orderly arrangement of group group efforts of group efforts to provide unity of action in the pursuit common goal. Okay, now this is the meaning or definition of coordinating. Coordinating means what? कोऑर्डिनेट करना किसी के साथ में, मतलब कि क्या, एक जो ग्रुप होता है उस ग्रुप के साथ में कोऑर्डिनेट करना है कि आप क्या काम कर रहे हो, मैं क्या काम कर रही हूँ। एक प्रॉपर यूनिटी होनी चाहिए, एक प्रॉपर कमांड होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें हमारे कॉमन गोल जो है, जो कि हो जाता है हमारा प्रॉफिट, उसको अचीव करने में हमें आसानी हो जाती है। Now, coordinating means what? It's an orderly arrangement of group efforts to provide unity of action in the pursuit of common goal. How to achieve our common goal. For the sake of achieving common goal, we have to be in unity, है ना? For a particular kind of action, we have to arrange all the necessary things in proper manner, है ना, to achieve a common goal of our organization. Move on to the importance of coordinating. Importance of coordinating. The first one is encourage team spirit. Okay. The first importance of coordinating is it helps in encouraging team spirit, है ना, such as unity, trade unions. Okay, to encourage team spirit amongst workers will actually result in achieving the goal for the organization, है ना. Unity of workers या trade unions will also, we can say, a part and parcel of team spirit या a motivated team. अब हमारा कोऑर्डिनेटिंग का सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों? कोऑर्डिनेटिंग का हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि उसमें क्या होनी चाहिए, एक एनकरेज होना चाहिए टीम स्पिरिट के अंदर, एक खुद से वी कैन से एक वो जो एक फीलिंग आती है कि नहीं हम ये काम कर सकते। सारे जो एम्प्लॉयज है उन्होंने खुद से खुद को एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके बस ऑफकोर्स एनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, पुश करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जब एक यूनिटी बन जाएगी, जब एक यूनियन बन जाएगी, ट्रेड यूनियन बन जाएगी, बट ऑफकोर्स इन चीजों से क्या होगा कि हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट या हम जो भी एक पर्टिकुलर डिजायर्ड गोल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, हम लोग इजीली वो अचीव कर पाएंगे, है ना. टू एनकरेज टीम स्पिरिट अमंग्स वर्कर्स, it will definitely result in achieving a desired goal of your organization. Move on to the next one, guys, which is direction. Direction plays very important role in trade unions or unity. Okay, direction plays very important role, as ki, for example, we are discussing about coordinating over here. So direction means what? To direct a person for accomplishing the assigned work. Okay, direction means what? Direction is the process of, we can say, direction is the process of directing someone, है ना, according to his work या assigned work, कि how to complete the work, within how much time span we have to complete the work, what are the mode of, we can say, methods to conduct. All these are क्या बोलेंगे, involved or includes in direction process. Direction क्या होती है बच्चों कि एक जो बंदा है, जो वर्कर्स है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, उन सारे वर्कर्स को क्या करना चाहिए, काम से रिलेटेड डायरेक्ट करना चाहिए कि आप इस मेथड से काम कीजिए, आपको मतलब अच्छा होगा, आपको प्रॉफिट अर्न होगा, या आपका काम दिए गए समय में कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह के डायरेक्शंस अगर हम हमारे वी कैन से एम्प्लॉयज को देते हैं या उनको मोटिवेट करते हैं,
जिसकी वजह से क्या होगा, डेफिनेटली हमारी कंपनी का जो भी डिजायर्ड गोल है या टारगेट है वो अचीव होने में मदद मिल जाएगी. मूव ऑन टू द थर्ड वन गाइस, which is motivation. Okay, motivation means what? To support the employees who is working in your organization, है ना, by motivating them. हमारी कंपनी में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं बच्चों, उनको सपोर्ट करना है, पुश करना है, या उन्हें मोटिवेट करना है ना, उनको वी कैन से उनकी तारीफें करनी है कि नहीं आप लोग तो कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, और यू हैव टू डू इट, like that. Motivational words we have to say in front of them, so that will we can say definitely results in achieving a desired goal of your organization. Now motivation helps in increasing efficiency. Motivation helps in increasing efficiency of employees, and it also helps in achieving desired goals. ओके अब हमारा मोटिवेशन क्या करता है बच्चों, मोटिवेशन मदद करता है. मोटिवेशन का मतलब होता है किसी बंदे को पुश करना या उसको सपोर्ट करना उसके काम से रिलेटेड. अब हमारा ये जो मोटिवेशन है बच्चों, ये किस चीज में इंक्रीमेंट करता है या किस चीज को इंक्रीज करता है. मोटिवेशन एक बंदे में अगर हमने मोटिवेट किया है किसी एक बंदे को, तो वो बंदा ऑटोमेटिकली वी कैन से अपनी जो भी एफिशिएंसी लेवल रहेगी, है ना, द वे ऑफ कंप्लीटिंग अ टास्क, या उसके अंदर कितने पोटेंशियल्स, कितनी एबिलिटीज यूज करनी है, वो सारी चीजों की, है ना, या वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय, वो चीज इंक्रीज होती चलती है उस बंदे में कि यस मैं तो कर पाऊंगा, या मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ, है ना. दिस विल हेल्प इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ योर एम्प्लॉय, एंड वंस the efficiency of employee is increased, so it will result in achieving a desired goal of your organization. अगर एक बंदा बहुत ही अच्छे से मन लगा के काम कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो चुकी है, तो बट ऑफ कोर्स वो बंदा अपनी कंपनी के लिए वी कैन से एक डिजायर्ड गोल अचीव कर पाएगा. आइए देखते हैं अगला पॉइंट. Okay, the next point is proper utilization of resources. Now, proper utilization of resources means what? The aim of each and every businessman is to earn maximum amount of profit. The main aim of every business organization is to earn maximum amount of profit by using minimum available resources. है ना. So the process of using minimum available resources is known as proper utilization of resources. Okay, हमें हर एक बिजनेसमैन का क्या मकसद होता है बच्चों, कि हम कैसे कम से कम मतलब के रिसोर्सेस को यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा ले. आइए देखते हैं, उसमें आ जाएगा टू अवॉइड वेस्टेजेस या टू कंट्रोल over the things, है ना. We can avoid wastages by controlling the we can say by controlling over the things. चीजों के ऊपर कंट्रोल करके हम उन चीजों के वेस्टेजेस होने से बचा सकते हैं. इसी चीज को बोला जाएगा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, है ना, ऑर्गेनाइजेशनल objective. Now, as I told you, the main aim of each and every organization is to earn profit. है ना. Here I've written कि
The main aim of every organization is to earn maximum amount of profit by using minimum available resources. हर एक कंपनी, हर एक बिजनेस, हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है बच्चों, उसका मेन मकसद यही होता है कि कैसे बिजनेस में मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा लूं, कैसे अपने बिजनेस को इंक्रीज कर लूं, कैसे अपने बिजनेस को डेवलप कर लूं। और वो कैसे होगा कि जब मैं अपनी चीजों का ऊपर कंट्रोल करना सीख जाऊंगी, वेस्टेजेस को अवॉइड करूंगी, और जब मैं कम से कम चीजों से ज्यादा पैसे बना पाऊंगी, उसी प्रोसेस को बोला जाएगा मेरा प्रॉपर, वी कैन से प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। और जब मेरी कंपनी में प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस रहेगा, तभी मैं मेरा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाऊंगी। नेक्स्ट इज इम्प्रूव relation between management and employees. Okay, it will also help in, we can say, improve the relationship between the management and the employees of your organization at all levels. As coordination is there between, we can say, the management and the employees of the organization, but of course there should be no fights, no we can say kind of conflicts and all, है ना, nothing will arise in your organization। अगर हमारी ये जो वी कैन से एक ऑफिस है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा कि क्या व्हाट इज गोइंग इन एंड अराउंड योर ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो लोगों को, इफ दे आर अवेयर अबाउट द थिंग्स, तो क्या होगा कि सारे लेवल्स के बारे में, सारी मैनेजमेंट वी कैन से सारा टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, तीनों लेवल्स के बारे में अगर मैनेजमेंट को अच्छी खासी जानकारी होगी, तो बट ऑफ कोर्स उनके बीच में फाइट्स होंगे ही नहीं, कॉन्फ्लिक्ट्स ही नहीं होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी। आइए देखते हैं अगला वाला। leads to higher efficiency. Okay, it will also help in leading the higher efficiency of your organization by using new techniques, by using innovative ideas for the betterment of your organization. ओके, इट लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। हमारी कंपनी की वी कैन से ग्रोथ और अच्छे से हो जाएगी। कब? जब हम लोग न्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, या हम हमारी इनोवेटिव आइडियाज का इस्तेमाल करेंगे, या वी कैन से एबिलिटी, स्किल एंड नॉलेज ऑफ द पीपल्स वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन। उनकी एबिलिटी, उनकी स्किल और उनके पास में कितना नॉलेज है, इन सब चीजों को अगर हम इकट्ठा कर लेंगे, तो बट ऑफ कोर्स हमारी एफिशिएंसी जो है वो और वी कैन से एनहांस हो जाएगी और बढ़ जाएगी। इम्प्रूव गुडविल, improves goodwill. Now first let me explain you the meaning of goodwill. Goodwill means name and fame in the market. ओके, मार्केट में किसी कंपनी की शोहरत, उसका रुतबा या उसका नाम, उस चीज को बोला जाएगा हमारा गुडविल। वंस द कंपनी इज अचीविंग प्रॉफिट कंटिन्यूअसली, सो इट विल वी कैन से डायरेक्टली हेल्प इन इम्प्रूविंग गुडविल ऑफ द कंपनी। गुडविल क्या होती है बच्चों, कि मार्केट में किसी एक कंपनी का नाम, कि कैसे वो कंपनी काम कर रही है, या उसके प्रोडक्ट अगर बहुत अच्छे, तो बट ऑफकोर्स उस पर्टिकुलर चीज की मार्केट में गुडविल बन जाएगी, शोहरत बन जाएगी, नाम बन जाएगा। अब अगर हमारी कंपनी को कंटिन्यूअसली प्रॉफिट ही हो रहा है, तो बट ऑफकोर्स हमारी कंपनी की जो गुडविल है वो बढ़ती ही चली जाएगी। नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। Okay, unity of direction means what? To assign the work to the employees for achieving a desired goal or target. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब कि क्या, हर किसी को अपने अपने काम से रिलेटेड डायरेक्ट करना चाहिए, समझाना चाहिए कि आपने ये काम करना है, ये काम आपको असाइन किया है, दिया गया है, आप इस काम को विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम अगर कंप्लीट कर लेते हो,
तो हमारी वी कैन से हमारी कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा एंड ऑल. एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द सेशन इज स्पेशलाइजेशन. Specialization means what? In every department, yeah, in each department, one specialized person is appointed by the management. Okay, specialization means what? Ki there should be experts, or we can say specialized person appoint in each department. For example, in purchase department एक purchase का master होना चाहिए, in sales department एक sales का master होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि एक एक बंदा स्पेशलाइज्ड उस पर्टिकुलर सेक्शंस में अवेलेबल होगा या डिपार्टमेंट्स में अवेलेबल होगा. तो बट ऑफ कोर्स हमारी कंपनी की ग्रोथ कहीं और ही रहेगी. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.